download it and install it in my laptop. So if I open this virtual box manager, I will be able to see how many machines I have installed in my laptop. So you can see here so many names are appearing: Debian, Ubuntu, NGN, some CentOS also there, Solus, Debian also there. All these are the Linux operating systems which I have installed, and I'm using three operating systems in three virtual machines in this particular virtual box, and each one is acting as one independent server with their respective IP address. And we have already configured one phone in each of the server, and one server I am going to use as NGN server, so that I can show you the centralized trunking. So how the NGN is taking the calls from us with 8 digit and transmitting 5 digit to other end. So the filtering of digit either inside the NGN or it can be at the recipient can be done. So that particular part in the dial plan we can show, but at primarily what we have to do is we have to uh, install one virtual Oracle VM manager in your laptop, so that you can use your Windows platform as well as Linux platform simultaneously. You can install independently a Linux version, Debian or Ubuntu in your independent PC. Thereby, you will not have the flavor of Windows. So, in this case, I am using Windows platform as well as Linux platform. So, already I have installed two servers. So, how to create a virtual machine is with this with the help of this new icon. So, in the initial stage, you will not have all these machines available. This will be blank. So, first machine when you going to create, that will be created by clicking this new icon and set up for this. Select the RAM, selecting the hard disk space. So, naming also we can give. So, some class or something you can onto it. And what type of want to install, that you have to type from the down arrow button and scroll down and select Linux, and what version you are going to install, that you have to select. So according to the processor, you can select a 64-bit operating system, or it can be 32-bit operating system. I can, can be selecting this 64-bit. And after selecting this, you have to just go to the next line and select the RAM available with your physical RAM. So it may be 6 GB or 4 GB. So whatever amount of RAM you want to dedicate, वो आप इसको dedicate कर देना है, और ये डेडिकेट करके आप इसको में क्रिएट हार्ड डिस्क में जाकर एक हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे जिसका स्पेस डायनेमिकली आप एलोकेट कर पाएंगे, एंड दैट मिनिमम इट इज डिफॉल्ट शोइंग 8 GB. You can increase or decrease according to your necessity and choice. So I may be keeping it 20 GB and just create this machine. Okay, so then now I am ready with a machine called name online classes. For this, we have to do some settings. So just the second part, you can go to the settings. It's taking little time to. So in this settings, we have to do the network settings so that we can connect this virtual machine to our actual IP network. And also we have to insert a installation disk or installation file into that particular disk. So here you can see these two things. One is network setting. So thereby you have to select the network setting in a adapter mode. So total 4 adapters are available with this machine. You can connect to 4 IP service providers connectivity to these adapters virtually. Okay, and you can select any one of them. So I'm enabling this first adapter, connecting into bridge mode and connecting with the LAN port. That is the LAN adapter name is Realtek PCI FE family controller. You can connect with the Wi-Fi adapter if you are on Wi-Fi. Okay. So particularly when you are switching from Wi-Fi to LAN connectivity or from LAN to Wi-Fi, you have to see that this particular adapter is getting selected over there. So after selecting this, just make it okay, and the settings will be saved. Then go to
settings again and go to this storage. Thereby you can find this empty CD drive, that is virtual CD drive. This we have to select with the installation CD. 20 GB hard disk and some 20 GB, 20.13, 20 GB and 2 GB RAM. And now we can start this machine and start installing the operating system onto it. So it is a very small process of installation. It will take some 40 to 45 minutes. And so once this is installed, you'll be able to see the desktop like this. So I have already created a NGN machine and already installed a operating system Debian Linux version into this machine 9.0 I have installed. And this now I'll show you how to do further activity of installation. We asked for password. So this password I have provided. This we have to give at the time of installation only. So installation process also is there in the slides what we have shared with you. this, उसमें उसमें भी लिखा हुआ है. यहाँ पे आप एक टर्मिनल विंडो ओपन करना है because all the PPX applications what we are going to use they are CLI based. Actually two versions are available. तो एक वर्जन होता है जिसमें आप GUI वर्जन इंस्टॉल अगर करते हैं तो आपको एक वेब पेज मिलता है या आप वेब ब्राउज़र से उसको इंस्टॉल एक्सेस करके एक वेब पेज पे आप सेटिंग्स को कोऑर्डिनेट करते हैं या कंपाइल करते हैं और फिर उसको सबमिट करते हैं. यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो है हमारे लाइन या कमांड लाइन के द्वारा. तो हमें उसके लिए एक क्राफ्ट टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कि हम अभी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं. एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू after the installation what are the three things or how to get Asterix installed onto this machine. So now you can see that it is prompting for this dollar prompt sign over here and I have to provide the credential like for user SU. आवाज आवाज नहीं आ रही सर. अभी अभी आ रही है. में बहुत लो हो जाता है सर. हाँ वो थोड़ा माइक्रोफोन इधर उधर जा रहा है. अभी ठीक है ना. नाउ यू आर ओके. अभी ठीक है सर. ठीक है. Right, right, right. Okay. Now password we have to give. So I'm giving the password reset and then enter. So now I'm changing from my dollar prompt to hash prompt. Now I'm in the admin mode. So here I can see that if I have a asterisk file available or not. So if I put a asterisk and the path for asterisk file which are to be installed in my etc folder. So normally then asterisk will be installed in etc folder. If it is available, then we'll be reaching to asterisk. But now it is saying that no such file or directory is available. That means asterisk is not installed on this particular machine. So now how to get it? So first we have to go to a advanced programming tool. So we'll go for etc/apt pt sorry apt. So now I am in apt directory and here I can get install this asterisk. So what is the command? Apt get install asterisk. Okay. So now this apt advanced tool will go to the asterisk.org. It will download the file and then it will install the asterisk on my virtual machine. So just give, and for that you must be connected to internet. That is the first condition. If it is not connected on internet, then it will not install anything. Okay, so now we want to continue. We'll just continue with yes. And now I'm getting the
site connected, that is Debian mirror.nkn. It is already I have selected for downloading the Asterisk from nkn.in. So from there I'm getting the files for Asterisk. So it is downloading, and now again it will install also. So with the 5 minutes it will be ready. Once it is ready, then we will be able to see the screen like this. So it is already configured machine with here same thing, IRISET. And now this is the actual working machine. I am already in the terminal. I'll just cancel it and I'll show you. So this is the machine what I have already configured. तो जब आप एस्ट्रिक्स में अगर जब पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि अगर आपने एस्ट्रिक्स इंस्टॉल कर लिया है, then only etc asterisk will be available for you to access the configuration files. तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फाइल कॉन्फ़िगर करने हैं उसकी स्लाइड्स भी हैं वहाँ पे. तो I'll not go through the slides, but you can see the slides afterwards. But I'm showing you just the text of how to go to the slides, I mean to the commands or to the configuration file. तो इस पर्टिकुलर S6 में जाने के लिए जिस फाइल को हमें एडिट करना होता है उसके लिए यहाँ पर हर एक लाइनक्स वर्जन के साथ में उनका एक एक एडिटर आपको दिखाई देता है. तो यहाँ पे एक एडिटर है, नैनो एडिटर. दिस नैनो एडिटर विल एडिट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल विच आर रिटन इन asterisk. So my file which I want to configure is a zip.cunf फाइल. तो zip.cunf फाइल एक ऐसी फाइल है ब्रदर्स जिसमें कि हम यूजर्स के अकाउंट को डिफाइन करते हैं. मतलब यहाँ पे दो चीज़ है कि सर्वर में अगर आपको एक आईपी फ़ोन या आईपी यूज़र के रूप में अगर किसी को रखना है, देन यू हैव टू क्रिएट ए अकाउंट फॉर हिम और फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र. जैसे कि हम जीमेल में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तभी हमें ईमेल आना जाना या फिर बाकी के और भी जो ऑप्शंस उस पर्टिकुलर वेब पेज पे अवेलेबल होंगे वो हमें दिखाई देते हैं. तो इसका मतलब है कि मेल सर्वर में हमारे लिए एक अकाउंट क्रिएट किया गया है जो कि हमने अपने क्रेडेंशियल्स उनको दिए और उन्होंने उसका एक अकाउंट बना के हमें बताया कि अब आप उसका ये यूज़र आईडी है, ये पासवर्ड है, आप इसको यूज़ करिए. इसी तरह से हमें भी अपने फ़ोन्स के लिए एक सिप अकाउंट बनाना है. वो सिप अकाउंट हम अपनी एस्टिक्स में sip.cunf फाइल में बनाते हैं. तो ये sip.cunf फाइल आपके सामने खुलेगी. इसको मैं अभी 1-2 मिनट में खुल जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ. In meantime we can go back to this ngn server where we can see कि हमारा excuse me, install हुआ है. just excuse me, Jariya ji. Yes, sir. Actually, please announce trainees. All trainees actually from Monday the class starts at 9 o'clock. Please note, सभी लोग नोट कर लीजिए कि 9 बजे स्टार्ट होगा. सो यू हैव टू कम बाय 8:30 से लॉग इन हो जाइए. ओके, राइट. Okay, sir. उनको एक बार बता ही दीजिए. ओके, मंडे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, अदरवाइज दे विल अगेन कम एट 10. Okay, So sir. all should WhatsApp come पे by आप- 8:30 or 8:45. Okay. I will give a message, but just No I problem. announced. Okay, right. Okay. Thank you. I am making you host and Right. Thank you. एक मिनट, ये अभी ओके. तो यहाँ पे भी ये मशीन हो गई है, इसमें ऑलरेडी बन गया है. विल जस्ट अगेन लॉग इन इनटू इट. ये थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा पीसी ब्रदर्स, थोड़ा सा इसकी तरफ करिएगा. मैं फिर से एक बार अपने टर्मिनल में जाता हूँ और एनजीएन के लिए हमने अभी एक सर्वर बनाना था, उसमें एस्ट्रिक्स नहीं था. नाउ दैट वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू गेट एस्ट्रिक्स इंस्टॉल्ड. वो ऑलरेडी मैंने आपको इंस्टॉल बता भी दिया था. ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है एस्ट्रिक्स का, ये आप टर्मिनल में देखेंगे ज़रा. तो मीन टाइम हम चलते हैं बैक. ये एक जो रेडी सर्वर है हमारे पास, इस सर्वर में मैंने एक sip.cunf फाइल खोली है. यहाँ पे ये सिप कॉन्फ़िगरेशन की एक एग्जांपल फाइल है जिसको कि आप स्क्रॉल डाउन करके पेज डाउन बटन से आगे जाकर देख सकते हैं और इसमें जो भी लिटरेचर लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लें. और इसी से कुछ कुछ चीज़ें जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की जो
कंडीशंस है उसको ये सॉल्व कर सकता है। तो नॉट ऑल सभी चीज़ें आपको इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ एट ऑल इफ़ यू वांट समथिंग टू बी यूज्ड ऑन टू इट, यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। बट जहाँ तक हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, अकाउंट क्रिएशन का, तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारे पास ये कर्सर आ जाता है, और कर्सर के बाद हमें इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ अकाउंट लिखने होते हैं। तो अकाउंट को लिखने की विधि है कि इसके लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, एंड आवाज नहीं आ रही सर। वेट 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 वेट, ये भी सामने सिस्टम जो थोड़ा हैंग होता है, हाँ इसलिए, हाँ राइट। तो नाउ द अकाउंट विल बी क्रिएटेड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक अकाउंट मैंने क्रिएट किया है सीनियर डीएसटी के नाम से, और इसमें जो क्रेडेंशियल्स आपको लिखने हैं उसमें टाइप इक्वल टू फ्रेंड, होस्ट इक्वल टू डायनामिक, कॉन्टेक्स्ट, सीक्रेट ये पासवर्ड है, क्वालिफाई जो कि हमारे सर्वर के लिए अप्लीकेबल रहती है, इनसिक्योर इक्वल टू इनवाइट ये भी हमारे सर्वर से के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है। और अगर किसी फ़ोन को हमें वीडियो सपोर्ट देना होता है तो हम उसको वीडियो सपोर्ट इक्वल टू यस कर देते हैं, तो किसी भी समय में वो फ़ोन ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। तो हमें फिर बार-बार उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। द यूज़र कैन यूज़ ए ऑडियो फ़ोन और ही कैन यूज़ ए वीडियो फ़ोन आल्सो। तो हमारे लिए यहाँ पे जो अकाउंट है, ये अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सीनियर डीएसटी के नाम से। इसको हम नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिक यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपने नॉर्मल एक्सचेंज में हम करते हैं कि हमने किसी नंबरिंग प्लान में 5 डिजिट नंबर प्लान में किसी पोर्ट को 5 डिजिट नंबर से आइडेंटिफ़ाई कर दिया है, तो वो उसी का आइडेंटिफ़िकेशन मतलब यूज़र आईडी भी हो जाता है और उसके लिए वो डायल नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, we are using a numerics, alphabets to create the name or the account of a user, and we'll define this particular name, what number should be given as a dial number. तो यहाँ पे आप डायल नंबर और नेम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गेटिंग, ओके, सो आई एम गेटिंग, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, इको इको मिल रहा है सर, इको। अच्छा अच्छा, ओके। सो ये जो 5-6 लाइनें हैं ब्रदर, ये आपको लिखनी है। पासवर्ड आपको इसका लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको इसके मीनिंग भी बता देता हूँ। टाइप इक्वल टू फ्रेंड का मतलब है द यूजर सीनियर डीएसटी कैन मेक ए आउटगोइंग कॉल, आल्सो इट कैन रिसीव द इनकमिंग कॉल। होस्ट इक्वल टू डायनामिक का मतलब है कि आप अपने जो फ़ोन को है किसी भी समय किसी भी लैन नेटवर्क में अगर कनेक्ट करते हैं, तो आपको डीएचसीपी से एक एक आईपी एड्रेस अलॉट होगा, और उसी आईपी एड्रेस से आपको इस सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो माय सर्वर विल only know that the host is particular IP address with a particular name and particular secret password is sending a request, and if that password and name is authenticated in this server, then Hmm. then only this particular user will be registered। तो ऐसे करके आप बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे बना सकते हैं, सभी में सेम लाइनें आपको लिखनी होती है। इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करना है, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करना है। जब ये nanosip.conf फाइल एक बार लिखी जाएगी, इसे हमें एस्ट्रिक्स में जाकर रिलोड करना है। उसके लिए एक कमांड है एस्ट्रिक्स -rvv, बिल्कुल बहुत छोटी-छोटी कमांड है। जब आप इस CLI कमांड में आ जाते हैं, यहाँ पे आप अपनी इस सिप फाइल को लोड करने के लिए कमांड लिखेंगे सिप रीलोड, और जब आप इसको लिख देंगे और अगर आपकी फाइल सही से कॉन्फ़िगर हुई है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें करेक्टली दिखाई देगी। अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी या कहीं गलती होगी, दैट विल बी प्रॉम्प्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन्स वेयर ऑन व्हिच पर्टिकुलर लाइन यू आर हैविंग ए एरर। तो यहाँ पे हमारी जो sip.conf फाइल है, इसमें सीनियर डीएसटी अकाउंट लिखा जा चुका है। यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे, और फिर से हम अपनी एस6 वाली जो फाइल है, सी डायरेक्टरी है, एस6 डायरेक्टरी में दोबारा आ जाएंगे। इस डायरेक्टरी में अब हमें क्या करना है कि एक डायल प्लान लिखना है जो कि हमारे सीनियर डीएसटी को कॉल करने के लिए बनाया जाना है। उसके लिए भी हमें फिर से एडिटर फाइल को ओपन करना है, तो नैनो एडिटर का इस्तेमाल करेंगे,
और extensions.conf फाइल में डायल प्लान फाइल। तो sip.conf फाइल हमारी अकाउंट फाइल है और नैनो extension.conf फाइल जो है हमारी क्या कहते हैं डायल प्लान फाइल है। इस फाइल में अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पर भी हमें एक extension.conf की एग्जाम्पल फाइल मिलेगी, डायल प्लान फाइल जिसको वो कहते हैं, और इसमें हर तरह के लोकल डायल प्लान, इंटरनल डायल प्लान्स और ग्लोबल डायल प्लान्स के लिखने की विधि बताई गई है, एंड दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड Hari, हाउ I'm टू yes, राइट Hari. I'm देम Professor Admin इन Eriset. So today we'll be इन द डायल प्लान, yeah, ताकि good आप afternoon किसी to one भी and all. समय किसी भी नंबर को जब डायल करते हैं लोकली, इंटरनली या फिर ग्लोबली, तब आप इन फाइल को, इस पर्टिकुलर डायल प्लान को लिख पाए। तो यहाँ पे सभी डायल प्लान के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बनाया हुआ है डायल प्लान, जिसमें मैंने इस पर्टिकुलर फ़ोन को एक फ़ोन कॉन्टेक्स्ट में या एक कॉन्टेक्स्ट नेम या ग्रुप नेम जिसका नाम हमने फ़ोन रखा है, इस फ़ोन ग्रुप में इसको रख दिया है। और इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर सीनियर डीएसटी को एक डायल नंबर दिया है, जिसका IP डायल नंबर है conversion. 49000। मतलब किसी भी समय This इस IP सर्वर packets में अगर goes here, 49000 and नंबर से अगर after कोई कॉल आती है या here, डायल करके कोई this व्यक्ति आता है, तो ये PUGW सर्वर इस card पर्टिकुलर डायल converts नंबर को this डायल IP फंक्शन के packet द्वारा into सीनियर डीएसटी अकाउंट TDM पर भेज देगा। ये इसका communication, कहना है, मतलब एक्सटेंशन and further डायल goes करवाना to है this one, और and vice एक्सटेंशन का versa. डायल नंबर है TDM, and 49000, after coming जिसको पहली here, suppose प्रायोरिटी this में call is meant for डायल किया from जाए this सिप to अकाउंट this. सीनियर डीएसटी की So तरफ, here, ये इसका after मीनिंग coming है। here, इसी तरह से the आपको हर data एक is एक्सटेंशन again के लिए या हर एक अकाउंट के लिए converted एक into एक डायल नंबर digital बनाना होता है। यहाँ पे IP मैंने packet, सीएसटी अकाउंट के लिए and the 4700, destination IP address डीएसटी के is लिए this IP 48000, address, ऐसे आप and अलग source अलग IP address नंबर्स is मैंने यहाँ पे this बनाए IP हुए हैं। address. That's ये it. वाली Once फाइल this को भी IP आपको packet is लिखना है made और इसको भी सेव using करना है destination IP कंट्रोल ओ address से, और and this यहाँ one से आप IP इससे address, बाहर आ सकते wherever हैं। it goes, suppose it बाहर is आने not पर there हमें फिर here, से it is उसी suppose router S6 is there, CLI my कमांड phone पे is जाना है, somewhere और यहाँ Delhi, जो हमने डायल प्लान and this बनाया IP है address is उसकी working at फाइल को Delhi, लोड करने की कमांड no लिखेंगे problem. डायल प्लान रीलोड में, Straight तो away ये this डायल प्लान goes to रीलोड this हो जाएगा। router, routing अगर is डायल there. प्लान गलत हुआ है या कोई चीज़ गलती से So कुछ बनी है, so much तो यहाँ पर उसके भी flexibility एरर्स आपको दिखाई देंगे। integration. अगर कोई Okay. एरर नहीं आया है, इसका मतलब आपने Uh, फाइल्स in को our सही तरीके से बना लिया है। reset, इसी we are तरह की already using विधि हम integration लोग दूसरे और एक or सर्वर में भी करेंगे, TDM exchange, क्योंकि सर्वर हमारे PUGW पास card ऑलरेडी connected यहाँ our पे LAN, रखा हुआ है। and of course we are using तो इसमें only मैंने for lab purpose, but लाइनेक्स it is का live. उबंटू So here, because वर्जन my डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनेक्स D1 IP है। exchanges, इस वाले मशीन में लाइनेक्स all उबंटू this. पड़ा है, उबंटू So another 20.02, pictorial ये view लेटेस्ट वर्जन है of उबंटू का, integration. और इस Again, this is वर्जन a में TDM हमने exchange, normal exchange, and Ethernet एस्टेक्स switch, इंस्टॉल किया है। Ethernet इसमें switch, भी मैंने LAN. Suppose it's a अकाउंट LAN. बनाए हैं, जो कि मैं आपको Okay. अभी 1 मिनट So में anybody बता wants to देता हूँ, और फिर हम फ़ोन की तरफ communicate this जाएंगे ताकि phone फ़ोन रजिस्टर कर पाएँ। straight So here away. also I Your will show you IP address is that your source IP I address. have Destination IP address is this nano gateway IP address, and straight away it sip.conf, goes इस and फाइल में भी convert into TDM and vice versa. Suppose if you want to in the WAN network, say अकाउंट बने हुए हैं, this IP is और यहाँ पे आप देख network पा रहे is हैं कि there, मैंने the एक अकाउंट बनाया communication है is 3800, unlimited. और ये That is why availability, न्यूमेरिक यूज़ किया है। reachability, यहाँ पे हमने wherever you are. इस If वाले the सर्वर में routing is there, routing is नाम available, लिया था सीनियर you can डीएसटी अकाउंट connect ने, your और यहाँ पे हमने normal न्यूमेरिक यूज़ किया है network 3800 to IP टू network. नेम द So this अकाउंट, is another. और उसी का डायल नंबर भी हमने 3800 ही रखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका डायल प्लान में क्या लिखा है हमने। तो उसके लिए भी कमांड है सेम नैनो एक्सटेंशंस डॉट conf, extensions.conf, और यहाँ भी पेज डाउन बटन से इस टेक्स्ट फाइल के सबसे अंतिम छोर में जाकर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जो कॉन्टेक्स्ट नेम दिया है उसका नाम है टी लैब। इस वाले सर्वर में हमने दिया था फ़ोन, और इस वाले सर्वर में हम दे रहे हैं टी लैब। तो टी लैब ये अपनी लोकल कंटेक्स्ट है, जो कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ग्रुप का नाम दर्शाती है। मतलब सभी सब्सक्राइबर या सभी यूज़र्स इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हैं, तो वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखकर उसके नीचे इस नंबर के लिए जो डायल प्लान बनाया है, वो डायल प्लान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने सिप अकाउंट 3900 के लिए डायल नंबर 39000 को सिलेक्ट किया है। मतलब ये नंबर अगर डायल किया जाए तो डायल फंक्शन के द्वारा इस सिप अकाउंट 3900 के पास कॉल पहुँचाई जाए। ठीक है, तो ये 2 सर्वर अभी मेरे पास में मौजूद हैं, और क्योंकि इस सर्वर में मैंने सिर्फ 2 ही नंबर मौजूद कराए हैं, मतलब 2 ही नंबर कॉन्फ़िगर किए हैं, तो 2 फ़ोन हैं क्योंकि मेरे पास, तो मैं ये दोनों फ़ोन आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक
फ़ोन डाउनलोड किया है जिसका नाम है माइक्रोसिप, और इसमें मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें अकाउंट नेम है 3800, जो कि इस उबंटू सर्वर से कनेक्टेड है, और एक 3CX फ़ोन सीनियर डीएसटी के नाम से मैंने रजिस्टर किया है जो कि इस उबंटू सर्वर के अंदर है। तो मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉलिंग के लिए इन दोनों सर्वर के बीच में भी हमें कुछ कनेक्ट करना होगा। मतलब इस फ़ोन से इस फ़ोन में अगर कॉल करनी है तो हमें एक अलग और एक डायल प्लान बनाना होगा और दोनों सर्वर के बीच में ट्रंकिंग करनी होगी। तो हाँ? हाँ, तो ट्रंकिंग ट्रंकिंग का जो ऑप्शन है, अभी मैं अगर आपको चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक कॉल आपको करके दिखा देता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ट्रंकिंग है इन दोनों के बीच में। तो हियर यू कैन सी दैट दीज़ 2 सर्वर्स आर सेपरेट। ये दोनों सेपरेट सेपरेट सर्वर हैं और दोनों की CLI, एक मिनट इसमें भी मैं चले जाता हूँ पहले तो, और इसकी CLI को भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको कॉल का पता लगे कि मतलब वी आर एबल टू गेट द कॉल। और यहाँ एस्टेरिस्क, और यहाँ पे आप देखिए कि हम दोनों फ़ोन से अब कॉल करते हैं। यहाँ से मैं कॉल करूँगा इस वाले सीनियर डीएसटी का, तो सीनियर डीएसटी का नंबर हमने क्या रखा है, 490000। टाइम लग रहा है थोड़ा। 49, वेट। So now you can see both the systems, the CLI response has come. इसमें भी response आ रहा है, इसमें भी response आ रही है, and now we are able to receive the call, and now the call has been connected. Now you can see that this Ubuntu server and the Debian server both are different, and we are able to make a direct call without using STD. I have already written a dial plan to use STD code and get it filtered in the incoming side. I'll just disconnect the call here, and now we can use a STD code to dial this 49000. For that, the STD code is 020 for calling to Debian server, and for Ubuntu server it is 010. तो आप किसी भी फ़ोन से किसी भी फ़ोन के लिए पहले STD कोड के बिना हमने डायल किया था, अब हम STD कोड के साथ में डायल करते हैं। तो ये STD कोड है 020, जो कि इस Debian सर्वर का कोड है, और इसमें हमने इनकमिंग फ़िल्टर में 020 को फ़िल्टर करके 49000 सीनियर DST को रिंग देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम इस नंबर को अगर डायल करें, तो अब देखिए आपने कि 3800 से कॉल आ रही है, लेकिन इस समय हमने ये 020 को उबंटू सर्वर से भेजा और डेबियन सर्वर में इसकी इनकमिंग लाइन फ़िल्टर। तो जिस समय आप इस तरह का कोई अगर डायल प्लान जिसमें फ़िल्टरिंग का ऑप्शन रखते हैं, तो आप इनकमिंग फ़िल्टर्स या आउटगोइंग के समय फ़िल्टर्स या फिर किसी सेंट्रलाइज़्ड सर्वर में फ़िल्टरिंग का काम करा सकते हैं। ये तीनों एंड में कर सकते हैं, या तो सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पे फ़िल्टरिंग करते हैं, सभी जगह से आने वाली कॉल के पहले 3 डिजिट माइनस हो जाए, या फिर आप अपनी-अपनी तरफ से भेजने से पहले ही 3 डिजिट माइनस करके आगे फॉरवर्ड करें, या फिर अपने पास पूरे 8 डिजिट रिसीव करके पहले 3 डिजिट निकाल कर बाकी के 5 डिजिट की जो नंबर्स हैं अपने अकाउंट या अपने यूजर्स के पास। तो if this particular dial plan you want for filtering, you can use it. We have given the choice in here to filter the digit or STD code in here.
we are sending 8 digit, 3 digit and sending it to the other exchange on 5. ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें और भी अगर कुछ चाहिए तो हम लोग एक सेशन और बना लेंगे, that you can be able to अगर इसके लिए अगर किसी को और सेशन चाहिए तो हम 1 घंटे की और भी एक्स्ट्रा क्लास कहीं से करवा लेंगे, सो दैट वी कैन बी एबल टू यूज इट। ठीक है, अभी क्योंकि आपका समय भी बहुत हो रहा है, तो आज के दिन हम यहीं पे बंद करते हैं। ओके सर ओके, थैंक यू सर। जड़िया साहब एक्सक्यूज मी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मैं ईस्टर्न रेलवे से रोल नंबर 8 बोल रहा हूँ सर। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक्चुअली अपना मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहा हूँ और सर मैं ऐप के जरिए मीटिंग ज्वाइन किया। हाँ तो सर मेरा प्रोफाइल एडिट करने के लिए थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए। मैंने रोल नंबर मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके, तो अभी इस समय तो ठीक है, मैंने जो आपको स्लाइड बताई थी उससे आप देख के कर पा रहे थे क्या? मैंने सर नहीं, हम ब्राउजर में क्या टाइप करेंगे उसको उस पेज में जाने के लिए? उसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो एक स्लाइड है मेरे। लेफ्ट द मीटिंग। टाइम लग रहा है इसमें, थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम। ये स्लाइड मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर की थी, अगर आपको चाहिए तो शायद व्हाट्सएप में भी किसी के पास। मैंने एक्चुअली सर हम इंटरनेट में ब्राउजर में क्या टाइप करके उस पेज में जाएंगे? इतना कर देने, उस पेज में जाने से मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, हमारी जो सेटिंग ऑप्शन है उसी में एडिट पेज थ्रू ब्राउजर बोल के जो नीचे एक ब्लू कलर में आएगा, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको वेब पेज ओपन करने के लिए अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने सर मैंने भी इनिशिएट सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ हमने किया था लेकिन वो हुआ नहीं था। फिर मैंने ट्राई किया कि एक में आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर फोन में या किसी में भी एक वापस लॉग इन करके आप उसको एडिट करोगे तभी होगा। प्रोबेबली मेरे लॉग। भी सर 2 दिन से ऐसा ही रहा। अच्छा अच्छा, तो एक काम फिर करिए आप। मैंने फोन से ही किया, फोन से फिर वो जब उसी को वापस लॉग आउट किया और फिर मैंने हाँ हाँ, लैपटॉप से लॉग इन किया तो वो हो गया। तब आया। हाँ, तो वो अपडेट होने में, नहीं क्योंकि आप पहले आईडी से, लॉगिन होना पड़ रहा है सर, लॉगिन होने के बाद लॉग आउट। तो एडिट करने के बाद में आपको लॉग ऑफ होना है और फिर से लॉग इन करना है, री लॉग इन करना है, तब फिर ये आ जाएगा। ना, मेरे वेब पेज कौन सा है सर? iriset.in या वेबएक्स? वेबएक्स का वेब पेज खुलेगा, लेकिन वो वेब पेज के लिए आपको अलग से लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। इसी इसी में जब आप अपना जो एडिट प्रोफाइल वाला जो पेज जो खोलते हैं, उसी में नीचे लिखा रहता है कि एडिट फ्रॉम माय वेब पेज, वेबएक्स साइट बोल के, वो आप जो क्लिक ये करेंगे। क्या ये ऐप में भी है या मैंने हम तो ऐप से मीटिंग ज्वाइन किया, वेबएक्स ऐप डाउनलोड करके हाँ उसी सर, में प्रोफाइल, उसमें प्रोफाइल मैंने अब हम करेक्ट एडिट कर सकते हैं सर? उसमें तो नहीं आ रहा है। मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप अगर इसमें चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। नहीं, मोबाइल ऐप से, हो जाता है, ऐप ऐप से। से सर, ऐप। बिल्कुल बिल्कुल, ऐप से ही करना है। तो आपको ऐप ओपन करनी है, तो मैं बता देता हूँ। आपकी ऐप जब खुली होगी तो स्क्रीन के ऊपर आपके जो सेटिंग करके एक ऊपर एक कॉल है, उससे आपको बनाना है। एक्चुअली सर मैं बहुत कोशिश किया लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो मीटिंग छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो सर Hello, sir. Good evening, sir. Umisha here. हाँ, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Sir, Linux compulsory नहीं है ना, Windows में भी कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, लॉगिन लाइनेक्स इसलिए है क्योंकि एसिक्स जो है वो नॉर्मली लाइनेक्स प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया है। So there is no compatible version for Windows PC or any other this thing. तो Linux के किसी भी वर्जन में आप S6 डाल सकते हैं, बट वो Linux Okay. ही होना चाहिए। पहले मैं 3C किया था स्टार्टिंग में, हाँ लेकिन हाँ, वो सेम नेट पे है, कोई कॉलिंग होती है, डिफरेंट होता है ना, तो फिर कॉलिंग नहीं होती है।
अच्छा हाँ, तो नॉर्मली 10.31 का भी रेंज है, 10.33 का भी रेंज है। तो 10.33 आपने इंस्टॉल किया था 3CX, तो 10.31 वाले हाँ दूसरे पीसी में होता है, लेकिन 10.33 पीसी में इंस्टॉल तो वहाँ पे कॉलिंग नहीं होती है। नहीं आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। एक मिनट हेलो सर, अभी क्लियर है? एक मिनट एक मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हाँ सर, हाँ सर हम लोग के यहाँ पे 10.31 का भी रेंज है एंड 10.33 की। तो मैंने पीसी का जो वो 10.31 था, तो सेम जो रेंज है 10.31 का से काफी बराबर कॉलिंग हो रही थी, लेकिन जो 10.33 पीसी है दूसरा वाला, उसमें हाँ कॉलिंग नहीं हो रही ओके। नहीं थी। नहीं, तो तो नॉर्मली जो से कुछ आपने मतलब तो आपने वर्चुअल मशीन में सर्वर बनाया था या फिर डायरेक्टली आपके लैपटॉप उस लाइनक्स सीधा इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं सर, मैंने वर्चुअल पीसी अच्छा तो मतलब दोनों दोनों जगह वर्चुअल मशीन में सर्वर बने हुए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके तो उस केस में क्या है कि अगर वहाँ पे जो आपने जो अडाप्टर है उसको ब्रिज मोड में अडाप्टर को कनेक्ट करना है और कनेक्टिविटी देख लीजिए कि आप लैन पोर्ट से कनेक्टेड है तो लैन अडाप्टर सेलेक्ट करें या अगर वाईफाई अडाप्टर है तो वाईफाई से सिलेक्ट करें। और पहले तो अपने मशीन की जो क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी है वर्चुअल मशीन की आपके लैन पोर्ट से उसको चेक करने के लिए आप पहले आईपी एड्रेस को पिंग करके देख लीजिए कि आपके मशीन से आप आपके पीसी से बाहर जा भी पा रहे हैं या नहीं। तो मतलब नेटवर्क में या डीएनएस को आप पिंग करके देख लें या फिर करके देख लें तो हो सकता है। तो पहले आपको लोकल कनेक्टिविटी मशीन की और आपके जो फिजिकल लैन अडाप्टर है उन दोनों की कनेक्टिविटी पहले चेक करनी है क्योंकि वो हो सकता है कि आपके लैपटॉप तक पहुंच रहा है लेकिन आपके वर्चुअल मशीन में कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए वो आपकी कॉल स्टैब्लिश नहीं हो रही। तो पहले इंश्योर कर लेना है कि आपको सही से कनेक्टेड है और ब्रिज मोड में कनेक्टेड है और फिर ट्रांसमिशन भी हो रहा है। ओके सर, तो ट्राई उसको करने के लिए क्या कीजिए आप नेटवर्क सेटिंग में और अडाप्टर सेटिंग में दोनों आइकॉन्स जो है ना हमारे लैन अडाप्टर का और हमारा जो वर्चुअल मशीन का जो अडाप्टर है इन दोनों को सिलेक्ट करके उसको ब्रिज मोड में कनेक्ट करिए। कनेक्ट इन ब्रिज। नॉर्मली क्या है कि डिफ़ॉल्ट में कभी-कभी ब्रिज हाँ, हो जाता है किसी-किसी मशीन में आपको मैन्युअली वो दोनों एडाप्टर को सिलेक्ट करके कंबाइन करके दोनों के बीच ब्रिज बनाना पड़ता है नेटवर्क सेटिंग में। अगर वो ओके ब्रिज सर, ट्राई। मशीन्स आइसोलेटेड होंगी। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर, झड़िया साहब। हाँ, हाँ, बोलिए। सर मेरे को तो ये पेज आपने जो ये खोला दिख रहा है, हाँ, लेकिन हाँ। उस पेज में हम मैंने जाने से इनिशियल मैंने वही हमको नहीं समझ में